four terminal, two at input and two at output. So if you study your two-port parameter, then ideal transformer has T parameter and H parameter, but for the transformer we cannot have the Y and Z parameter. That will be studied in your two-port theory. Okay, this is just introduction about the two-port theory. Okay, now let's solve the numerical. I think it is L. Okay, it is L. Okay, so start करते हैं हम अपने numerical को. Now again solution start करते हैं बिल्कुल basic से. We know that V2 upon V1 equals to N2 upon N1, that is equals to I1 upon I2, that is equals to N. So हम अगर इसकी बात करें, so हमारा आउटपुट पे क्या लगा हुआ L, so ZL equals to what? V2 upon I2, that is equals to N V1 upon I1 upon N. Okay, so let's we will have N square V1 upon I1. और हमसे पूछा क्या है? अच्छा, हमसे ये पूछा है if an ideal transformer has an inductive load element at port 2, then what will be the equivalent inductance at the port. मीनिंग क्या है? अगर आउटपुट पे L लगा हुआ है तो ये इंडक्टर पे कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, दैट द मीनिंग. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्टेड इंपीडेंस. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ इट इज L. It is L. The output impedance L, and it is N square, and it is input. It is input. So Zin is equals to L upon N square. So देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? L upon N square. Is there any option? So let me confirm. L upon N square. हमसे पूछा क्या है? Find the equivalent inductance at the port 1. I think यही पूछा है ना. Output is L and output is L, so it is N square V1 upon V1. Yes, Zin. So okay, so we have to change your option. Okay, I think this option should be L upon N square. Okay, so your input impedance is L upon N square. Now if you see the option, अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना चाहें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. ऐसे ऑप्शन हमें उठाने हैं जिसमें n स्क्वायर हो, और n स्क्वायर जो है वो दो ही ऑप्शन में है. तो एक ऑप्शन ये चला गया और एक ऑप्शन ये चला गया, तो या तो ये सही होगा या ये सही, और इन दोनों में से सही चाहिए तो हमें आना चाहिए कॉन्सेप्ट जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो अब हमने अभी तक क्वेश्चन देखे हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम के, ट्रांसफार्मर के. कुछ और न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो मैक्सिमम पावर थ्योरम से रिलेटेड है. इसके बाद जो है हमारी मैक्सिमम पावर थ्योरम खत्म हो जाएगी, और अगली जो थ्योरम हमारी रह गई है that is the reciprocity theorem and Millman's theorem, and the last theorem is the Teligens's theorem. So इतना कवर करने के बाद हमारी DC जो है फिनिश हो जाएगी, और फिर हम इसके बाद लास्ट कंक्लूजन देखेंगे ऑल द थ्योरम्स का. तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो ओवरऑल मैक्सिमम पावर थ्योरम से रिलेट करेंगे. ठीक है, यहाँ तक. तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं कुछ लास्ट प्रॉब्लम मैक्सिमम पावर थ्योरम से, और फिर इस थ्योरम को एंड करते हैं, और हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम जो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे. और एक सेकंड लास्ट थ्योरम और है, दैट इज योर मिलमेंस थ्योरम, एंड आई थिंक यू इन योर सिलेबस द नेक्स्ट थ्योरम मे बी द टेलिगेंस थ्योरम. सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द maximum power theorem. Okay, so we will have in the circuit shown in figure, just wait, it is not working proper. So in the circuit shown in figure, Vs is the constant. Vs is the constant voltage source. Vs is the constant voltage source, and IL is a constant current load. IL is a
constant current load. Okay, the value of IL, the value of IL that maximizes the value of IL that maximizes the power absorbed by the constant current load is, now ऑप्शन है आपके, पहला जो ऑप्शन है वो है आपका Vs/4, Vs/4R, अगला ऑप्शन है Vs/2R, तीसरा ऑप्शन है Vs/R, और लास्ट ऑप्शन जो है वो है आपका इंफिनिटी, अनंत जिसको बोलते हैं ना। और इससे रिलेटेड जो फिगर है वो है आपका, इट इज Vs then R, this is R, then IL, it is IL, okay, so it is IL. Now is there any left thing? No, question complete हो गया। So this is your question related with the maximum power theorem। कुछ ही प्रॉब्लम रहेगी जो हमें कंप्लीट करनी है, इसके बाद जो हमारी मैक्सिमम पावर थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगी ना। क्या है भाई क्वेश्चन देखते हैं। सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या निकल के आता है ना। In the circuit shown in figure, Vs is the constant voltage source and IL is a constant current load. The value of IL that maximizes the power absorbed by the constant load current. Okay. So मीनिंग क्या है यहाँ पर देखते हैं इन्होंने करा क्या है क्वेश्चन में। अगर मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉ करूं फिर से, so it is Vs and here it is Rs. Now in general it is RTh, but here we have in general load where we have load voltage and where we have लोड। एक्चुअल में जो हम लोग देखते हैं वो सर्किट ये देखते हैं राइट हैंड साइड वाला, बट इन्होंने कैसे करके दे रखा है, ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। सो हम यहाँ मान लेते हैं अपनी तरफ से ये वोल्टेज है लोड वोल्टेज, ठीक है तक। सो अगर यहाँ देखें ये हो गया आपका लोड वोल्टेज। अगर हम इस लोड वोल्टेज में KVL लगा, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था जब वोल्टेज सोर्स और एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स सीरीज में लगे होंगे तो जो करंट है वो होगी करंट सोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी। सो अगर मैं KVL लगाऊं यहाँ देखिए, Vs माइनस R इंटू IL माइनस ऑफ VL इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम दैट VL इक्वल्स टू Vs माइनस IS इंटू VL इक्वल्स टू Vs R इंटू IL, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं बात करूं जो मैक्सिमम पावर थ्योरम अंडर मैक्सिमम पावर क्या कंडीशन होती थी? अंडर द मैक्सिमम पावर कंडीशन RL शुड बी इक्वल टू RTh। ना जब रेजिस्टेंस बराबर होंगे तो वोल्टेज क्या होगा? अगर आप यहां लगा कर देखेंगे VL इक्वल टू क्या होगा? VTh इंटू RL अपॉन RL प्लस RTh। बट RL और RTh तो बराबर ही होते हैं, तो VTh इंटू RL और RTh बराबर होंगे तो RTh इक्वल टू RL रखेंगे 2RL। सो इट इज VTh अपॉन 2। और हमारे क्वेश्चन में ये किसके बराबर दे रखा है? VS के, तो इट इज VS बाई 2। ये बात समझ में आ रही होगी अब आपके। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, सो हमारे VL की जो वैल्यू है वो कितनी है? VS बाई 2। ये बात समझ में आ गई ना सबको? ठीक है। तो अगर हम क्या करें VL को इक्वेट कर लें, सो या हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में देखते हैं क्या आता है। सो VS अपॉन 2 इक्वल्स टू VS
माइनस RIL, ठीक है यहाँ तक। सो अगर यहाँ से हम देखें इसको सब्ट्रैक्ट करके या इसको इधर ले जाते हैं, RIL इक्वल्स टू VS माइनस VS/2। सो VS में से VS/2 गया, दैट इज VS/2। बट हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछिए लोड करंट। सो IL इक्वल्स टू VS/2R। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है क्या? सो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, यस हमारे पास ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है बी। सो योर ऑप्शन बी इज 101% करेक्ट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है जिसने भी ये क्वेश्चन डिजाइन किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सो in which of the following it is not desired to attain the condition of maximum power transfer, ठीक है यहाँ पे। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। देन ऑप्शन है हमारे पास, क्या ऑप्शन है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास है कम्युनिकेशन सर्किट्स। Then we have the next option, that is computer circuits। Then अगला ऑप्शन जो है हमारे पास है D, that is electric circuit। So this is a theoretical question that they are asking। So क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, देखते हैं क्या है। In which of the following it is not desired to attain the condition of maximum power transfer? Yes, yeah, actually this question is based upon application। in general होता क्या है, जो स्टूडेंट हैं वो थ्योरम तो लगाना जान जाते हैं। जैसे मैक्सिमम पावर थ्योरम में क्या है, जस्ट फर्स्ट स्टेप में लोड को हटाइए, लोड को रिमूव कर VTH निकाल लिया, VTH निकालने के बाद RTH निकाल लिया और RTH को RL के बराबर रख दिया, मैक्सिमम पावर निकाल ली, दैट इज PL इक्वल्स टू VTH²/4RL। और बोले एफिशिएंसी कितनी है, 50%। बट हम ये भूल जाते हैं कि कौन सी थ्योरम जो है वो कहाँ अप्लाई होती है, दैट मीन उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये जो थ्योरम है ये मैक्सिमम पावर थ्योरम जो, और सुपरपोजिशन थ्योरम भी मैंने बताई थी। जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। सिमिलरली जो हमारे मैक्सिमम पावर थ्योरम है वो इलेक्ट्रिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो क्यों नहीं है वो सुनिए जरा ध्यान से। इन जनरल फॉर द इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें, या फ्रॉम द पावर सिस्टम इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू डिजाइन एनीथिंग, देन सपोज यू आर डिजाइनिंग एक पर्टिकुलर जनरेटर, देन उस जनरेटर से हमें क्या डिजायरेबल है, हमें डिजायरेबल जो है वो ये है कि उस जनरेटर का जो आउटपुट जो एफिशिएंसी है वो 100% हो आइडियली, और जो वोल्टेज रेगुलेशन है जनरेटर के केस में वो कितना हो, 0 हो, ठीक है। बट अगर हम यहाँ देखें इस मैक्सिमम पावर थ्योरम में, तो हमने देखा तो जो एफिशिएंसी है 50% है
और जो लॉसेस है वो भी 50% है। तो अगर आप ऐसा कोई जनरेटर डिजाइन कर दे रहे हैं जिसकी इफिशियंसी 50% है और लॉसेस भी 50% है तभी है वो, तो इलेक्ट्रिकल में अगर ऐसा कर देंगे तो इट इज नॉट वेरी गुड थिंग, बिकॉज अगर आपकी इफिशियंसी 100% नहीं होगी, सपोज यू आर हैविंग 10 megawatt at the sending end and you are only sending 50 megawatt, then you will have the revenue on 50 watt and you are wasting 50 megawatt. So who will pay for this? Who will pay for this? क्लियर है? सो अगर कंपनी इसको पे करेगी, जो भी जनरेटिंग कंपनी इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है वो इसको पे करेगी, तो वो जो मनी इन्वेस्ट कर रही है वो 10 मेगावाट के लिए कर रही है, बट रेवेन्यू मिल रहा है 50 मेगावाट से, तो कंपनी किस में चली जाएगी? कंपनी तो लॉस में चली जाएगी, बंद हो जाएगी। सो हम लोग ऐसी चीज डिजाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल में कि अगर हमें 10 मेगावाट सेंडिंग पे है मेरे पास, तो जो 10 मेगावाट है लगभग जो है 10 मेगावाट पहुंच जाएगी, आइडियली 10 मेगावाट ट्रांसफर हो जाएगा, तब मेरे पास रेवेन्यू आएगा, उस रेवेन्यू से सारी चीजें क्या होंगी? चलेंगी। सो अगर हम मैक्सिमम पावर थ्योरम अपने इलेक्ट्रिकल में लगाएंगे तो एफिशिएंसी कितनी रह जाएगी? 50% और लॉसेस बहुत 50% हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, जो दोनों थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम एंड एमपीटी थ्योरम, आर वैलिड फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। अगर मैं पूरी होल ब्रांच की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके, सो हमारी जो दोनों थ्योरमें हैं वो किसमें लगती है? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में लगती है। उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट, या वहां होता है कम्युनिकेशन सर्किट, डिजिटल सर्किट, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर सर्किट, बट दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नॉट एन द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज इट इज अ कॉमन सब्जेक्ट, बट वो बात करें कहाँ अप्लाई नहीं होगी। सो जो मैक्सिमम पावर थ्योरम है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाई नहीं होगी। कहाँ का अप्लाई होगी? अगर मैं इनके एग्जाम्पल और देना चाहूं तो एग्जाम्पल भी आप ऐसे करके लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एप्लीकेबल होगी। देन वी हैव कम्युनिकेशन सर्किट एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? डिजिटल सर्किट की अगर मैं बात करूं, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, डिजिटल सर्किट और कंप्यूटर सर्किट। तो इतनी जगह ये सारी थ्योरम में क्या है? एप्लीकेबल होंगी। बट जो पावर सिस्टम है या कहें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, उसमें ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ऐसे इन जनरल क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, जो कि हमारा अब लास्ट क्वेश्चन होगा मैक्सिमम पावर थ्योरम से रिलेटेड। So our last question is, now last question for the maximum power theorem is, when a source is delivering maximum power to a load, then the efficiency of the circuit, and अगला पार्ट है ऑप्शन है इसका, is always 50%, ओके। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है depends upon the circuit parameter,
upon the circuit parameter, and C ऑप्शन जो है हमारा वो है is always 75%. Then we have last option, that is none of these. So this is your last question for the maximum power theorem. इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में थ्योरेटिकली काफी बार रिपीटिव है. सो देखते हैं कि व्हेन अ सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर टू लेट द एफिशिएंसी इज. I have also given you proof of this theorem, but every time I'm telling you that you just prove then you have clear your concept. So अगर हम बात करें ये this is VTH, this is your RTH, and this is your load resistance. Okay, this is A point, this is B point, and this is load is variable. Now if you see the efficiency is what? Output power upon input power into 100%. ठीक है यहाँ तक. So output power अगर आपको याद हो, मैंने प्रूव कराई थी RL equals to RTH is the condition, and PL max is equals to VTH square upon 4R गई थी. So रखते हैं वैल्यू भाई, VTH square upon 4RL. अगली अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा जाएगा? इनपुट पावर, और इनपुट पावर क्या है? VTH इंटू IL, ठीक है, इंटू 100. अगली अगर मैं बात करूं VTH स्क्वायर इंटू अपॉन 4RL, देन हमारे पास VTH तो है ही, बट IL की वैल्यू क्या होती थी? IL इज RTH प्लस RL. बट अंडर द मैक्सिमम पावर कंडीशन हमें निकालनी है तो उसकी वैल्यू रख दें. तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा. So it is VTH square upon 4RL upon. So sorry, it is VTH. Sorry, it is VTH. So it is VTH square. But when you put the maximum power condition, it is 2RL upon 2RL. So VTH से VTH square cancel out. Now it is 100. Now it is 2RL upon 4RL into 100. RL से RL cancel, 2 से 1 ये गया. So 1/2 into 100 and that is equals to 50%. ठीक है यहाँ तक. So this is all about the maximum power theorem. Now finally I will conclude the maximum power theorem. So हमने maximum power theorem कहाँ से स्टार्ट की थी? हमने maximum power theorem जो स्टार्ट की थी, सबसे पहले मैं इसको क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करा था, कहाँ से इसको टर्मिनेट करा. सो अगर मैं मैक्सिमम पावर थ्योरम की बात करूं तो हमने मैक्सिमम पावर थ्योरम को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, डीसी और एसी का. सॉरी, हमने मैक्सिमम पावर थ्योरम को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, डीसी और एसी. हमने डीसी में दो पार्ट में, फिर इसको डीसी में दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था. दैट इज मैक्सिमम पावर थ्योरम विद जनरल केस, एंड जनरल केस का मीनिंग था आरएल वेरिएबल एंड वीटीएच एंड आरटीएच इज कांस्टेंट. उस समय अगर हमने देख रही कंडीशनें जो आई थी, कंडीशन पहली कंडीशन आई थी आरएल इक्वल्स टू आरटीएच. फिर उसके बाद देखा था ना मैंने, जो मैक्सिमम पावर थी उसकी वैल्यू आई थी पीएल मैक्स बराबर वीटीएच स्क्वायर अपॉन 4RL. और उसी समय जो एफिशिएंसी आई थी वो कितनी आई थी? 50%. एंड द करंट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम पावर इज VTH अपॉन 2RL. यहां तक देख लिया था. दिस इज अबाउट द मैक्सिमम पावर थ्योरम इन डीसी केस, इन डीसी, एंड आई एम डिस्कसिंग द जनरल केस. फिर हमने एक इसका जो है एबनॉर्मल केस देखा था. उसमें क्या था? आरएल को फिक्स कर देते थे और आरटीएच को क्या करते थे? वेरिएबल कर देते थे. तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था कि हमें ऑप्शन वाइज चलना पड़ेगा कि ऐसा ऑप्शन जो आरटीएच को मिनिमम कर दे, एंड मिनिमम वैल्यू इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 ओम. तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज सेट करेंगे कि आरटीएच कैसा हो? 0. और ये भी ध्यान रखना, जहां आरटीएच वेरिएबल होता है, मतलब जहां आरटीएच को 0 लेना होता है, ऐसा इलेक्ट्रिकल में ही पॉसिबिलिटी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जितना मिनिमम होगा तभी हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी. और ऐसा ही होता है. इफ यू सी द पावर सिस्टम प्लांट एंड देयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग, द इंटरनल इंपीडेंस ऑफ द जनरेटर आर वेरी वेरी स्मॉल and the load is very very high. That's why we are extracting more energy from the generator. फिर हमने देखा था, इसी पे हमने कुछ एडवांस प्रॉब्लम करी थी
जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई थी कि दैट इज बेस्ड अपॉन द वोल्टेज डिवीजन रूल। उसमें शायद हमने दो प्रॉब्लम देखी थी। देन हमने जो मैक्सिमम पावर थ्योरम थी वो देखी थी एसी के साथ। एसी में मैंने फिर दो पार्ट डिवाइड करे थे, एक था जनरल केस, और जनरल केस में हमने देखा था लोड वेरिएबल था, और उसमें कंडीशन जो निकल के आई थी ZL इक्वल्स टू ZTH कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर इंपीडेंस आपका RL सीरीज सर्किट है तो जो लोड इंपीडेंस है वो RC सीरीज सर्किट हो जाएगा, और अगर आपका इंपीडेंस जो है वो RC सीरीज सर्किट है देन योर लोड रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो RL सीरीज सर्किट हो जाएगा। अगर पावर फैक्टर इंटरनली इंडक्टिव है तो कैपेसिटिव, और कैपेसिटिव है तो वो इंडक्टिव हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने एसी का दूसरा पार्ट देखा था जहां पर हमने रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन देखी थी। अगर मैं रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन की बात करूं तो रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन में जो है हमने देखा था पहला पार्ट जहां लोड तो एसी है बट RL वेरिएबल है और XL फिक्स है, तब उसका जो आंसर था RL बराबर था रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XL प्लस XTH का होल स्क्वायर एंड रूट ऑफ दैट। ठीक है, फिर हमने अगला पार्ट देखा था लोड तो AC है दैट इज ZL है बट वहां पे RL फिक्स है और XL वेरिएबल है, देन आंसर इज XL इक्वल्स टू माइनस XTH। फिर हमने लास्ट और पार्ट एक देखा था इसी का कि हमारा जो सर्किट तो है AC है बट लोड जो DC है दैट इज RL है और पूरा वेरिएबल है। तो इस केस में अगर हमने देखा था तो RL बराबर क्या आया था mod of ZTH, and mod of ZTH means RTH का स्क्वायर प्लस XTH का स्क्वायर and root of that. And the last case that we discussed that the maximum power theorem with transformer, that is also called impedance matching. Impedance matching हमने क्या देखा था ZL equals to हमने ZL जो ट्रांसफॉर्मर रूल था V2 upon V1 equals to N2 upon N1 that is equals to I1 upon I2 that is equals to N। वहां से हमने क्या करा था ZL बराबर निकाला था, ZL बराबर V2 upon I2, V2 और I2 की वैल्यू रख दी थी ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन ट्रांसफॉर्मर के रिलेशन से। तो हमने देखा था ZL बराबर जो आया था वो आया था N स्क्वायर ZN, या कह सकते हैं Zn बराबर ZL अपॉन N स्क्वायर। सो वहां पे भी हमने देखी थी प्रॉब्लम की इनपुट इंपीडेंस से प्रॉब्लम आ सकती है, नंबर ऑफ टर्न्स पूछ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा उसका अनुपात दैट इज रेशियो क्या होगा, ये प्रॉब्लम देखी थी। एंड देन लास्ट हमने क्या देखा था अभी एक सबसे पहली प्रॉब्लम देखी थी कि वो नई प्रॉब्लम आई हुई थी एग्जाम में। इसके बाद हमने एक एप्लीकेशन प्रॉब्लम देखी थी कि जो मैक्सिमम पावर थ्योरम है वो कहां कहां लग सकती है, कहां कहां नहीं लग सकती। एंड लास्टली वी सी द लास्ट प्रॉब्लम व्हाट इज द एफिशिएंसी ड्यूरिंग द मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो हमने देखा एफिशिएंसी कितनी होती है 50%। अब जो हमारी मैक्सिमम पावर थ्योरम है वो फिनिश हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं और उस थ्योरम का नाम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम जो है वो स्टार्ट करते हैं, द नेम इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम।